So yesterday we have discussed about three things. First was this few important concepts. That is, how can we use with option to open a file, with option with keyword to open a file. That means there is no need of closing the file now. It will close automatically. It will close automatically. Everything will be written inside the block. And then we have discussed how to check whether a file exists or not before opening it. It's always better to check before doing any operation, and is file was the function which is inside OS module within the submodule path, and the name is is file. It returns true or false if file exists. And then we have discussed exception handling also. We have discussed this thing at the time of pickle module 2, and you can do exception handling in general cases also. Whenever you see runtime errors are coming, you can do it by using exception handling. So now let us start with next important concept, that is remaining absolute path versus relative path. This is very easy concept. Let me tell you, very easy concept. Absolute path versus relative path. It is used when we are opening a file. It is used when we are opening a file. Absolute path. First of all, let's understand what is absolute path. Absolute path. It is a complete path of the file. It is a complete path of the file which includes drive name. इसमें drive name भी होगा. That is E, C, D, whatever drive name, followed by folder name and file name with extension. Okay. It is a complete path of the file which includes drive name followed by folder name and file name with extension. Let me tell you. And we will be using slashes here, and which slash? Forward slash. Sorry, backward slash. We will be using backslash here. This is the backslash and this is the forward slash. This forward slash you can use if you are using Linux system, Mac operating system, this will work. But in Windows operating system, you have to use backslash only. You have to use backslash only. So let us assume there is one file inside drive E within folder Python, and the name of file is alpha.txt. So how can we find the absolute path of this? Very easy. Absolute path. The syntax of writing absolute path. Syntax of writing. It's very easy. We already discussed absolute path. And if you have done HTML also, in HTML also there is concept of absolute path and relative path. The absolute syntax of writing drive name, then colon, drive name colon, then 2 slash. Do remember 2 slash will be used, and then folder name, then slash slash. If there is subfolder, then write subfolder name. It's just like folder inside a folder, and in that manner it will go. At last, file name dot extension. At last, file name dot extension. So very easy. Let us form the answer of this question, which we have written here. So it will be E drive. Then the name of folder is Python, and the name of folder is, sorry, name of file is alpha. But you might be seeing that we were using only directly the name of file. That means in our program we were using relative path. In our program that we have done, we were using relative path. I will let you know what is the, how can we form relative path other than this also. E colon Python slash slash alpha dot text. Fine. This is the absolute path. Do remember, this is the absolute path. In absolute path you will specify everything. सब कुछ specify करोगे, ड्राइव का नाम, फोल्डर का नाम, सब फोल्डर का नाम, up to the last thing. ठीक है. Now let's come to relative path. कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है. Relative path. It is a path
which is relative to current directory in which file is stored in current directory, generally in current directory. Otherwise you have to specify the absolute path. Absolute path में तो आप कुछ भी कर सकते हो. That means आपका प्रोग्राम कहीं और स्टोर है and your file is somewhere else, then you should always use absolute path. But relative path कब use करते हैं? It is a path which is relative to current directory in which file is stored in current directory or inside some folder which resides in current directory. What is the meaning of this? Let me tell you. ठीक है, तो रिलेटिव का मतलब क्या है कि करंट डायरेक्टरी से रिलेशन है उसका, करंट डायरेक्टरी से रिलेशन. लेट्स टेक एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड. वेरी वेरी इजी, इट्स वेरी इजी. एग्जांपल, सपोज alpha dot text is the name of file opened and current directory path is current directory जहां आपने प्रोग्राम स्टोर कर रखा है. डू रिमेंबर, जहां आपने करंट डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर ही है जहां आपने अपना प्रोग्राम स्टोर कर रखा है. पाथ इज e:// पाइथन. जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि आपका प्रोग्राम यहाँ स्टोर है फोल्डर के अंदर और मेरी जो फाइल है वो अल्फा डॉट टेक्स्ट है. मेरी जो फाइल है वो अल्फा डॉट टेक्स्ट है, वो भी कहाँ पर है? इसी करंट डायरेक्टरी में, इसी करंट डायरेक्टरी में है. सो रिलेटिव पाथ विल बी simply, what is that? Let me do something like open function. Just mention the name of file alpha.txt, suppose R. So here automatically current directory location will be added before file name. That means, that is, क्या होगा ये? ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? e:// python / alpha.txt. ऑटोमेटिकली इट विल बिकम ऑटोमेटिकली दिस थिंग. ठीक है, अभी और देखते हैं एग्जांपल अपन, अभी और एग्जांपल देखेंगे रिलेटिव पाथ का. नाउ देन आई विल give you the practical also. We'll do one practical based on this relative path. Now suppose alpha.txt is stored inside a subfolder called programs. ठीक है, एंड डू रिमेंबर ये सब फोल्डर भी कहाँ है? करंट डायरेक्टरी में है, करंट डायरेक्टरी में ही है. ठीक है, अब करंट डायरेक्टरी का पाथ कुछ भी होता है. डू रिमेंबर, करंट डायरेक्टरी का पाथ कहीं पर भी होता है. करंट डायरेक्टरी, लेट मी टेल यू, लेट मी गिव यू वेरी इजी एग्जांपल. सपोज मैंने ई ड्राइव ओपन करा, यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया. सपोज लेट मी क्रिएट वन फोल्डर हियर. सपोज आई एम जस्ट राइटिंग पाइथन. ठीक है, नाउ लेट मी क्रिएट वन मोर फोल्डर. अगर मैं अपना प्रोग्राम यहाँ स्टोर कर रहा हूँ तो करंट डायरेक्टरी यहाँ तक होगी. देखो, e:/python. अगर मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ, सपोज यहाँ पर प्रोग्राम्स. इफ आई स्टोर इन दिस, अगर मैं यहाँ स्टोर करता हूँ तो मेरी करंट डायरेक्टरी क्या हो गई? e:/python/programs. ठीक है, डू रिमेंबर, करंट डायरेक्टरी कैन बी एनीथिंग. वेर एवर यू आर स्टोरिंग योर प्रोग्राम, दैट विल बिकम योर करंट डायरेक्टरी. ठीक है, वो आपकी करंट डायरेक्टरी बन सकती है. ठीक है, तो लेट्स से यहाँ तो मैंने प्रोग्राम स्टोर कर रखा है और यहाँ पर एक फोल्डर है डेटा, इसमें है मेरी फाइल. लेट मी क्रिएट वन फाइल हियर abc. ठीक है, यहाँ मेरी फाइल है. अब प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम है करंट डायरेक्टरी तो e:/python है. अगर तुमने ऐसा लिखा, सपोज दैट यहाँ आपका एक प्रोग्राम भी है. लेट मी क्रिएट वन प्रोग्राम हियर, जस्ट ए मिनट. आई एम जस्ट स्टोरिंग इट by python extension.
It's not actually a program, so that you can understand. Suppose pro.py, ये देखो, ये मेरा एक पाइथन का प्रोग्राम बन गया। पाइथन का प्रोग्राम मैंने एक यहाँ पर क्रिएट कर दिया। फाइन। अब मेरी जो फाइल है वो कहाँ पर है, abc.txt। करंट डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर है, डेटा उसके अंदर है। ठीक है, तो हाउ कैन वी यूज दिस? Suppose alpha.txt is stored inside a subfolder called programs that you are seeing here. Not let me write programs here. Programs. ठीक है, and current directory path is e:// Python. Now suppose alpha.txt is stored inside a subfolder called programs and current directory path is e:// Python. So here we can use absolute as well as relative path. Absolute path as well as relative path as well as relative path. Now let me give control to any one of you so that one can write absolute path for me. I will just give the control absolute path for this file. कौन से में? करंट डायरेक्टरी ये है, उसके अंदर एक और फोल्डर है प्रोग्राम्स और उसके अंदर है alpha.txt. लेट मी गिव यू कंट्रोल. ओके, हर्षित बंसल, I think you can write. Yes. Let me give you control. Okay, fine. Let's start writing. Just use your keyboard. That's it. Oh, easy. Very slowly, just type it out. Yes. Current directory is given as well as subfolder name is given. Yes, very easy. You have to use 2 slashes always, remember. Yes, very good. Keep on typing. Just use your keyboard. Forget about mouse. If you will touch your mouse, then it will not be easy for you. Just use your keyboard. That's it. Slowly type by keyboard. Slowly. Absolute path. Yes, very good. And now you have to, it's stored in programs. Yes, that's good. You will write the name of subfolder and then again. Yes, very good. Alpha dot and then the name of this file. Yes, super cool. So fine. So he has done it. This is the one, absolute path. Fine, that's good. But now we want to write relative path. Very easy. Relative path. Relative path will be simply just programs / alpha.txt. Because whenever you are writing such thing in open function, it will always add the current directory before it. If drive name is not present, always remember, if your path is not starting with the drive name, then it will always assume you are trying to find this inside the current directory. You are trying to find this inside the current directory. Now let us run this. Let's do it practically so that you will understand it. So now we can easily say that absolute path तो कब काम आएगा, जब दोनों ही अलग अलग लोकेशंस पे हैं, अलग अलग ई ड्राइव में, सी ड्राइव में प्रोग्राम, ई ड्राइव में फाइल है, तो आप एब्सोल्यूट पाथ को यूज करो. ठीक है, रिलेटिव पाथ तो अपन वैसे भी यूज करते आए हैं, बट व्हाट वी वर डूइंग, वी वर स्टोरिंग प्रोग्राम एज वेल एज फाइल्स. जो हमारी डेटा फाइल्स थी वो सब जगह सिंगल लोकेशन पे थी, तो आपको कुछ लिखना नहीं पड़ा. लेकिन अब इसमें क्या, मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट डाला, दैट करंट डायरेक्टरी यहाँ तक है बट सब फोल्डर में है. The data is stored in, the file is stored in subfolder called programs. That's what absolute path पूरा हुआ. And relative path सिर्फ यहीं तक का. Relative path सिर्फ आप बताओगे folder और उसका location. If you will write this thing तो गलत हो जाएगा. तो ये क्या करेगा, ये automatically इस चीज को copy कर देगा यहाँ पर and it will try to find in this. गलत हो गया. That is the reason you have to type, if it is in subfolder, you have to type like this. So let's just run it and execute it practically. Very easy. Okay, let's open it.
अभी वही क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ई ड्राइव वाला ही। लेट्स जस्ट ओपन इट फर्स्ट। ओके, ई ड्राइव में है अपने पास, प्रोग्राम बना ही हुआ है, प्रोग्राम्स फोल्डर है, इसमें abc.txt। लेट मी राइट समथिंग हियर। वेलकम टू पाइथन, save it, the name of file is abc। okay, it's in programs folder, this is my program, let's open it, edit with idle। okay, so now it's very easy। तो देखो, सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं फाइल हैंडलिंग का। राइट ए प्रोग्राम टू शो द concept of absolute path and print the data of file, that's it। ठीक है, तो विद ऑप्शन का यूज कर लेते हैं, बेटर है। अब सारी चीज यूज करते हैं अपन जो हमने देखा था, फाइल को चेक भी करेंगे। import os, it's better to use it if os.path.is file। यहां पर भी आप यूज कर सकते हो, डू रिमेंबर, यहां पर भी आप यूज कर सकते हो रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ को। here also you can use relative path as well as absolute path। right now I'm giving example of absolute path। तो e slash, you can see it is coming automatically। e drive में देखो ऑटोमेटिक आ गया कौन कौन से फोल्डर हैं। so in e drive let me write python, you can see python folder आ गया। then again it is going to open this, you can see। then फिर से अपने पास आ गया। ओके, जस्ट ए मिनट, स्लैश पाइथन, सॉरी, प्रो स्लैश। okay, just a minute, let me see। programs is the name of folder and abc is the file। okay, programs and abc dot text। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फाइल है, अदरवाइज नहीं है। विद ऑप्शन का यूज करते हैं आज। विद ओपन, सेम रिलेट, सेम एब्सोल्यूट पाथ, सेम टू सेम, बिकॉज वी आर डूइंग द क्वेश्चन ऑफ एब्सोल्यूट पाथ, कॉमा रीड मोड एज F1। विद ऑप्शन था, अब आपको क्लोज नहीं करना पड़ेगा, फाइल को क्लोज नहीं करना, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। x equals to f1 dot read, that we have done it already। print x, that's it। and after this else, you should close it here only, sorry there is no need of closing because we were using with option। and here you just write file does not exist, file exist नहीं करती है। ठीक है, let's run it now। okay, just a minute, give me one quick minute। eos.path.is file, where it is stored, e python, ई ड्राइव में ये पाइथन अपना प्रो प्रोग्राम में स्टोर है। ठीक है, लेट्स रन इट अगेन। व्हाट इट इज गिविंग द आंसर, लेट मी रन इट अगेन। ओके, इट्स नॉट, let's save it again first of all। let me save it first again, I think it's having some problem। program, suppose let me say absolute, saved। just a minute, give me one quick minute। python folder, it's not saved yet I guess। okay, let's create the program first, it's not saved, maybe some technical issues। let's create a program, new file, let me write it very quickly। write a program to show the concept of absolute path, read a file content। ठीक है,
Now we will use both the things. Import OS. If OS dot path dot is file. सबसे पहले इसको स्टोर कर देते हैं. Let me save it first. कहाँ सेव किया था? E drive में. I will store in E drive Python folder and here only. Absolute. Okay. Stored. Is file. यहाँ पूरा पाथ दोगे आप. E colon Python // programs / abc.txt. Okay. This is absolute path. अगर कंडीशन ट्रू है तो विद ऑप्शन से ओपन किया, सेम पाथ कॉपी कर दिया क्योंकि यही फाइल ओपन करनी है, कॉमा रीड मोड. ओके. एज फाइल हैंडल का नाम f1 आ गया. अब मुझे फाइल क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. x = f1 डॉट रीड एंड प्रिंट x. जैसे ही विद से बाहर आओगे फाइल अपने आप क्लोज हो चुकी होगी, जैसा कि अपन ने कल देखा था. And give one message here. File is not available. File is not available. Fine. Let's run it. See. Hello, welcome to Python. It's running. It's running perfectly fine. Hello, welcome to Python. Let me write wrong file name. Let's run it. File is not available. It's working. That's good. So this is the example of absolute path. That's easy. एब्सोल्यूट पाथ अपने पास में इजी था, ठीक है. बट व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग दिस एब्सोल्यूट पाथ इफ वी कैन यूज रिलेटिव पाथ? एब्सोल्यूट पाथ तो आप तब यूज करो जब अलग अलग जगह पर है, प्रोग्राम अलग ड्राइव में है, वो अलग ड्राइव में है, एंड इट्स बेटर टू यूज एब्सोल्यूट पाथ. बट हियर व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली यूज दिस थिंग, वी कैन यूज दिस थिंग वेरी वेरी इजीली. रिलेटिव पाथ. रिलेटिव पाथ डालता हूं मैं, देखो. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. रिलेटिव पाथ. रिलेटिव पाथ. यहां से इसको रिमूव करते हैं एंड here also let's try to remove it. Let's try to run it. See now, very easy. Now relative path दिया मैंने. करंट डायरेक्टरी तो मेरी वही है. करंट डायरेक्टरी कौन सी थी? वही e:// तो वो ऑटोमेटिक ऐड कर देगा एंड इट्स रनिंग नाउ. अगर आपने गलती से ये लिखा, अब क्या होगा देखो. अब अपने पास में ये फाइल ओपन नहीं कर पाएगा. फाइल ओपन नहीं कर पाएगा. आपने गलत डाला, ठीक है. या तो वहीं से डालो, स्टार्टिंग से ही गलत डालो. आप यहाँ पर ही ये लिखो abc.txt और यहाँ पर भी abc.txt. अब क्या करेगा ये? ई ड्राइव के पाइथन फोल्डर में ढूंढेगा. इट विल फाइंड इनसाइड द ई ड्राइव पाइथन फोल्डर. लेट्स सी. फाइल इज नॉट अवेलेबल. तो यू हैव टू गिव करेक्ट रिलेटिव पाथ. करेक्ट रिलेटिव पाथ क्या है? जिस फोल्डर के अंदर है वो, वहां आप इसे प्रेजेंट करोगे, ठीक है. लेट मी जस्ट डू इट लिटिल बिट डिफरेंस. सपोज अब ये एक और फोल्डर के अंदर है, इसमें एक और फोल्डर है, इसी में एक और फोल्डर है, सपोज डेटा. और ये वाली फाइल मैंने क्या करा? इस फोल्डर में कॉपी कर दी. तो अब क्या हुआ? अब देखो इस एबीसी का रिलेटिव पाथ क्या हो गया? एब्सोल्यूट पाथ तो यहां तक है, प्रोग्राम फोल्डर के अंदर, डेटा फोल्डर के अंदर एबीसी, ठीक है. तो कैसे करेंगे? वेरी इजी. प्रोग्राम के अंदर डेटा फोल्डर है, तो ये हुआ इसका रिलेटिव पाथ. एब्सोल्यूट पाथ में तो पूरा ड्राइव नेम अप टू दैट करंट डायरेक्टरी जहां प्रोग्राम स्टोर है. लेट्स रन इट नाउ. सी इट्स वर्किंग. हेलो वेलकम टू पाइथन. तो वेरी वेरी इजी. इट्स टू इजी दैट वी हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट नाउ. एब्सोल्यूट पाथ वर्सेस रिलेटिव पाथ, ठीक है. सो नाउ एंड एब्सोल्यूट में क्या होगा? पूरा पाथ डालना पड़ेगा. रिलेटिव में अपने पास में रिलेटिव टू दिस थिंग, ठीक है. बट डू रिमेंबर एब्सोल्यूट पाथ आपको हमेशा यूज करना जब अलग अलग ड्राइव्स के अंदर आपकी फाइल्स होंगी. ओके. So this we have discussed absolute and relative path. Now today let me discuss one very important program. Then we will go through with the next remaining portion. Let's discuss very important program. And my dear students, try to create programs by using functions. It's better to create the program by using function. Very easy. Just def keyword followed by function name, empty brackets.
Generally, empty brackets will be used in file handling, then colon, write all the code in the function itself. So let me write the question by using function. Very important question. Write a program to store numbers in a file, and always remember, if it is not, always remember, you can easily understand numbers we cannot store in text file. Of course, we need binary file. And if it is not given in the question, then you are free to choose any of the file. You are free to choose any of the file. We can do this question by using text file also, but in that we have to convert the number and then reconvert, and all such things are required. Store numbers in a file, and then numbers in a file, and then do the following operations. देखो कौन कौन से करना है. Display the numbers, सारे के सारे. सेकेंड, डिस्प्ले के बाद में now copy the even numbers into a new file and odd numbers into a different file. अलग अलग फाइल में मुझे कॉपी करने हैं, ठीक है. एंड देन प्रिंट बोथ द फाइल्स. कौन सी? जिसमें इवन नंबर से, जिसमें ऑड नंबर से, ठीक है. ये मुझे क्वेश्चन करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है. बाइनरी फाइल लेंगे अपन. देन हाउ मेनी नंबर्स वी वांट टू स्टोर, इट इज नॉट गिवन हियर इन दिस क्वेश्चन. तो टुडे वी विल डू इन डिफरेंट टेक्निक, दैट एज लॉन्ग एज मैं क्या करूंगा, यूजर से यस एंटर करवाऊंगा. यस, जब जब यूजर यस बोलेगा तब तब नंबर एंटर होगा, और जब यूजर यस नहीं बोलेगा तब मुझे उस लूप को स्टॉप करना है. दैट मीन्स नाउ यूजर कंट्रोल्ड लूप, राइट. टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड लाइक काउंटर कंट्रोल्ड, एन डालेगा तब एन तक चलाऊंगा. नाउ आई वांट सच काइंड ऑफ लूप इन विच यूजर विल एंटर यस, वो बार बार यस एंटर करेगा तभी मेरा लूप चलेगा. फर्स्ट टाइम पे मैं उसे एंटर करने दूंगा, फर्स्ट टाइम पे एंटर करने दूंगा, या फिर इट्स अप टू यू, ठीक है. सो नाउ लेट अस क्रिएट दिस अमेजिंग क्वेश्चन. तो देखो इसमें क्या, पहले देखते हैं क्या क्या चीजें चाहिए मुझे सॉल्यूशन के अंदर, क्या रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट थिंग, एक फाइल लूंगा नंबर्स डॉट बिन, फाइल वन जो अपनी होगी, फाइल वन नंबर्स डॉट बिन. इसमें नंबर स्टोर करवाएंगे, विल स्टोर नंबर्स इन दिस फाइल, ठीक है. सेकेंड, फाइल टू मैंने ले लिया इवन डॉट बिन, इवन डॉट बिन विल स्टोर ऑल इवन नंबर्स. कौन से? इस फाइल के जो नंबर्स डॉट बिन में है उसी में से कॉपी करना है मुझे, इवन डॉट बिन में. फाइल थ्री ऑड डॉट बिन विल स्टोर ऑल ऑड नंबर्स, ठीक है. तो क्या करेंगे, पिकल मॉड्यूल का यूज करेंगे. वी विल यूज पिकल मॉड्यूल, डंप एंड लोड फंक्शन का यूज करेंगे, कॉपी करवाएंगे डेटा को, एंड देन वन बाय वन वी विल बी डूइंग इट, ठीक है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट a loop which runs as per the user's choice, जो यूजर के चॉइस से रन करती है, ठीक है. बहुत इजी है. देखो कैसे. चॉइस दो तरीके सीखेंगे. मैंने चॉइस को पहले ही यस कर दिया, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम आई एम अलाउिंग द यूजर टू एंटर इट इनसाइड द लूप, व्हाइल चॉइस इक्वल्स टू यस. देखो मैंने क्या करा, कंडीशन में कुछ ऐसी बना दी कंडीशन की जब तक चॉइस यस रहेगा, पहली बार तो यस ही है, कंडीशन ट्रू. एंड नाउ हियर यू कैन डू ऑल योर कोड, जो भी आपको प्रोग्राम करना था वो सारे अपन यहाँ प्रोग्राम कर देंगे, ठीक है. ये इंसर्ट के टाइम पे करना है मुझे. आफ्टर दैट लास्ट में तुम दोबारा पूछो डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्योंकि अदरवाइज तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा. यू नो दैट इनफाइनाइट लूप नहीं चाहिए मुझे. डू यू वांट टू कंटिन्यू, देन
press yes. Now do remember user can press yes in capital, small, jumbled case. तो it's better we will convert in lower case. देखो दिखाता हूँ. Choice equals to input. इसी के बाद में strip कर दो. Left leading and trailing space हट जाएंगे और यहीं पर lower लगा दो. It's very easy to understand this. पहले डेटा इनपुट होगा. जो डेटा इनपुट हुआ वो यहाँ आ गया. स्ट्रिप से क्या होगा? इफ यू हैव एंटर्ड बाय मिस्टेक लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, उनको रिमूव कर देगा. यहाँ तक डेटा क्या हो गया? इनपुट करा हुआ डेटा विदाउट लीडिंग ट्रेलिंग स्पेस. एंड देन इट विल बी पास टू लोअर फंक्शन. वो क्या करेगा? उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा. व्हाई आई एम डूइंग इट? बिकॉज आई हैव रिटन द, आई डोंट वांट टू राइट सो मेनी कंडीशंस. दैट्स व्हाट आई हैव कन्वर्टेड एवरीथिंग इन लोअर केस. ठीक है, दैट्स इट. अब देखो कैसे चलेगा. कंडीशन पहली बार मैंने चॉइस को यस मान लिया, यानी फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट अलाउिंग यू टू एंटर एटलीस्ट वन नंबर, एटलीस्ट वन नंबर. कंडीशन ट्रू है. यहाँ आपने सारा काम कर दिया. एंटर ए नंबर, पिकल डॉट डंप, फाइल में कॉपी कर दिया. ओके. आफ्टर दैट while exiting from loop you are asking do you want to continue entering, then press yes. यूजर ने yes प्रेस करा कैपिटल में, यहाँ कैपिटल yes आ गया. अगर कुछ स्पेस होंगे तो हट जाएंगे राइट साइड के, दैट मीन्स लेफ्ट लीडिंग एंड ट्रेलिंग. एंड देन वो कैपिटल वाला yes लोअर में कन्वर्ट हो गया एंड इट विल गो टू लूप अगेन. फिर से कंडीशन ट्रू, चॉइस इक्वल टू yes, अगेन इट इज ट्रू. नेक्स्ट टाइम अगेन यू विल एंटर, अगेन यू विल आस्क द यूजर yes प्रेस करो. अगर वो नो प्रेस करता है तो देखो क्या हुआ, चॉइस में आ गया नो एंड नो इक्वल टू यस, फॉल्स. नो इक्वल टू यस, फॉल्स. ठीक है. अब इफ यू डोंट वांट दैट पहली बार भी लूप चले, इफ यू डोंट वांट पहली बार भी लूप चले तो क्या करो? वेरी सिंपल, दोबारा इनपुट करवा लो. प्रेस यस टू स्टार्ट एंटरिंग द नंबर्स. अब इस केस में क्या होगा? आपको फर्स्ट टाइम भी यस इनपुट करना पड़ेगा तभी लूप चलेगा, अदरवाइज लूप नहीं चलेगा, अदरवाइज लूप नहीं चलने वाला. ठीक है, बहुत सिंपल है, वेरी वेरी इजी. तो वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, very very important. So now let us implement this question today, and this is one of the most important question. First of all let's save it. Desktop पे save कर लेते हैं. On desktop there is a folder called Python. Okay, so here numbers underscore split. Let me write the name of program, numbers underscore split. Fine. So we will create functions. We will use module also here. Import OS, import pickle. Let's create the functions now. तो सबसे पहले क्या है, मेरे पास में def एक insert नाम का फंक्शन है. फंक्शन से घबराने वाली बात नहीं है, फंक्शन तो बहुत सिंपल है. जस्ट फंक्शन बन गया, आप सारा कोड यहाँ लिखो एंड देन वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग ऑल द थिंग्स. तो सबसे पहले कौन सी फाइल थी? वो मेरे पास में फाइल थी numbers.txt. ठीक है, तो मुझे वो क्रिएट करनी होगी. क्रिएट, ऑलवेज रिमेंबर, मुझे फाइल क्रिएट करनी होगी. ठीक है, और अब मैं फंक्शन को बार बार कॉल करूंगा. एक बार फंक्शन को मैं बार बार कॉल करवाऊंगा. ठीक है, एक बार फंक्शन कॉल होगा तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा. जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार आपके रिकॉर्ड इंसर्ट होते रहेंगे. ठीक है, एक तो ये तरीका है, या फिर फंक्शन के अंदर ही लूप डाल दो, फंक्शन के अंदर ही लूप डाल दो, वो क्रिएट करता रहेगा. ठीक है, तो लेट्स डू इट नाउ. सबसे पहले चेक कर लेते हैं os.path.h फाइल. इट्स बेटर टू चेक. और ऑल्दो वी आर ओपनिंग बाय यूजिंग, हम तो राइट मोड में कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है. विद ऑप्शन का यूज करेंगे, विद ओपन. लेकिन फिर भी बेटर रहता है चेक करना. मान लो कभी ड्राइव लॉक होती है या फिर कुछ और होता है तो बेस्ट है. एंड सारी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ट्राई में यूज करो. इट्स बेस्ट टू यूज ट्राई, ऑलवेज यूज ट्राई. ठीक है, अब करते हैं, अब प्रॉब्लम अपनी हट जाएंगी सारी. रिलेटिव पाथ का यूज कर लो. आई एम जस्ट यूजिंग नंबर्स डॉट बिन. ठीक है, कॉमा, लेट्स ओपन इन अपेंड बाइनरी. अगर अपेंड बाइनरी करते हो तो अगली बार प्रोग्राम रन करोगे तो कंटेंट हटेगा नहीं. ठीक है, अदरवाइज इट विल रिमूव द कंटेंट. कोई इश्यू नहीं है. एज F1. ठीक है, ओपन कर लिया मैंने. अब नाउ लेट्स जस्ट मेक दैट लूप. उस लूप को बनाना है अपन को जो बार बार क्या करेगा, इंसर्ट करवाएगा नंबर्स को. वेरी इजी. मैं पहली बार मौका दे रहा हूं यूजर को, या फिर ना भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स नॉट गिव एनी काइंड ऑफ
yes to start entering the numbers. And in your projects you will be doing lot of things like sign up का form बनाएंगे अपन, sign in करवाएंगे. From file handling we will check whether the user exists or not. We will do lot of good things on Sunday. Choice equal to input, press yes to start entering the number. Okay, while equal to yes, स्मॉल में लिखा है, फाइन. तो यहां से अपन क्या करेंगे, अब मैसेज डालते हैं. पहले एक एंटर द नंबर, एंड इफ यू वांट टू प्रिंट कि कौन सा नंबर एंटर कर रहा है, 1 2 3, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, देन यू कैन यूज वन वेरिएबल ऑल्सो. एक वेरिएबल को यूज करके लूप में इंक्रीज करते जाओ. इट्स अप टू यू. ठीक है, तो पहले नंबर इनपुट कर लेते हैं. नम इक्वल्स टू इंट इनपुट. मैंने इनपुट करवा लिया. Although we can remove this print statement and directly print here, enter the number. It's up to you. If you want, you can remove this line also and directly here you can enter the number. Very easy. Fine. Hint हो गया. अब pickle पे आ जाओ. pickle dot dump, बहुत सिंपल था. num comma f1. f1 में जाके इसे डंप कर देगा. ठीक है, फिर यहां चाहे से एक मैसेज दिखा दो, वन नंबर स्टोर्ड सक्सेसफुली, या जस्ट नॉट वन नंबर स्टोर्ड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ गया. ठीक है, यहां पर फिर से यूजर से पूछो, डू यू वांट टू कंटिन्यू, देन प्रेस यस. कंटिन्यू करना है तो यस प्रेस करेगा. वापस से इनपुट करवा लो. चॉइस इक्वल्स टू इनपुट. यहां पर मैंने स्ट्रिप फंक्शन भी यूज कर लिया और डॉट लोअर फंक्शन भी यूज कर लिया. बेटर है. फाइन, इट विल गो इनसाइड द लूप अगेन. as long as loop will run, it is going to store all the numbers in that loop. ठीक है, after this, if everything is good, you should print one message, all the numbers stored successfully. After the loop, all the numbers are stored successfully. ठीक है, now except लगा दो. कोई भी किसी भी टाइप का एरर आता है, any kind of error if comes, पिकल के कारण एरर आ रहा है या फिर किस लाइन के कारण एरर आ रहा है, जस्ट प्रिंट वन मैसेज, एरर इन फाइल, or that yesterday we have discussed different types of error, you can manipulate them. It's up to you. अब यहाँ मुझे क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि विद ऑप्शन का यूज किया था. ठीक है, ये तो हुआ इंसर्ट फंक्शन, वेरी इजी. नाउ डिस्प्ले, डेफ डिस्प्ले, यही फाइल मुझे प्रिंट करनी है. अब मुझे पता है डिस्प्ले में तो एरर आएगा, बिकॉज वी नो लोड फंक्शन जो है, लोड फंक्शन अपने पास में EOF एरर रिटर्न करता है. लोड फंक्शन EOF एरर रिटर्न करता है. ठीक है, तो लेट्स जस्ट राइट इट विद ओपन नंबर्स डॉट बिन RB एज F1. ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सा काम है. क्या करना है, मुझे एक इनफाइनाइट लूप बनाना है. लेट्स प्रिंट वन मैसेज हियर. प्रिंट content of numbers dot bin file is infinite loop बनाया. You all know that what is the need of this. R equals to pickle dot load F1 से and then print R. It will be printing all the numbers and once it will reach to end of file, once it will reach to end of file, of course it will return EOF error, and then we can write here all the numbers printed successfully. All the numbers printed, and I am just writing one more except here. Except कौन सा वाला करते हैं, फाइल EOF वाला, फाइल नॉट फाउंड वाला, वो स्पेशली हैंडल कर लिया. फाइल नॉट फाउंड एरर. ठीक है, ये कब आएगा, जब विद फंक्शन अपन कॉल कर रहे हैं एंड दैट फाइल इज नॉट अवेलेबल. वी हैव सेपरेटेड, वी हैव हैंडल्ड सेपरेटली
फाइल नॉट फाउंड का यहाँ हैंडल कर लिया और बाकी जितने भी एक्सेप्शंस होंगे, अब इसमें एक्सेप्शन एक ही आएगा, कौन सा वाला, EOF, और वो तो आना ही है, EOF एरर तो आएगा ही आएगा, बिकॉज एट लास्ट इट इज नॉट गोइंग टू रीड दैट फाइल। तो EOF का मतलब है सारे नंबर्स उसने सक्सेसफुली प्रिंट कर दिए। ठीक है, ये हो गया। अब एक फंक्शन और बनाना है सेपरेट करने का, तो लेट मी राइट हियर डेफ स्प्लिट, स्प्लिट नाम डाल दिया फंक्शन का। ठीक है, स्प्लिट नाम डाल दिया फंक्शन का, वेरी इजी। अब इसमें मुझे 3 फाइल चाहिएंगी, 3 फाइलें, 2 फाइल क्रिएट करनी पड़ेंगी और एक फाइल रीड मोड में ओपन करूंगा, 2 फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और एक फाइल रीड मोड में ओपन करूंगा। ठीक है, तो क्या करा मैंने, लेट्स डू इट नाउ। तो ओके, F1 इक्वल्स टू ओपन फंक्शन एंड क्या करा मैंने, E1 डॉट विन। इस बार इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं, सारा कुछ ट्राई कैच में डाल देते हैं, ओपन फंक्शन से करते हैं। F1 इक्वल्स टू ओपन नंबर्स डॉट बिन, तो रीड मोड में खोल दिया। बस ओपन फंक्शन में क्या आपको क्लोज करनी पड़ेगी फाइल। F2 एक फाइल क्रिएट करनी है, इवन डॉट बिन, इवन डॉट बिन, और इसे खोला राइट मोड में, फाइन। दूसरी फाइल भी क्रिएट करनी है, इसे भी मैंने ओपन करा राइट मोड में, odd डॉट बिन। It's just looking like कि size is, the program size is increasing, but it's not like that. Once you understand the concept, you have to create the softwares, and softwares always have more number of lines. तो दोनों मैंने फाइल क्रिएट कर ली। अब कुछ नहीं है, बस मैं करना क्या है, ये जो रीडिंग का प्रोग्राम बनाया था, रीडिंग वाला ही प्रोग्राम है, लूप चला के रीड करो नंबर्स डॉट बिन को, और अगर नंबर जो आ रहा है, देखो ये नंबर रीड ही कर रहा है, आर की वैल्यू अगर इवन है, यानी आर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो कॉपी इन इवन डॉट बिन, else copy in odd dot bin, very easy. Now let's just write infinite loop, रीड कर लेते हैं नंबर को, पिकल डॉट लोड कौन से नंबर से, F1 फाइल से, और चेक कर लो इफ r मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, देन कॉपी कर दो पिकल डॉट डंप, किसमें, F2 में, क्या कॉपी करना है, r कॉमा F2, वेरी इजी। एल्स किसमें कॉपी कर दो, F3 में, पिकल डॉट डंप r कॉमा F3। ठीक है, दोनों अपने प्रिंट, अपनी फाइल दोनों भी निकल चुकी हैं। ठीक है, दोनों फाइलें अपनी हो चुकी हैं, वाइल ट्रू एंड ऑल सच थिंग्स आर डन। आफ्टर दिस, जैसे ही मैंने ये पूरा कंप्लीट किया, जस्ट राइट वन मैसेज, बट इट इज नॉट गोइंग टू प्रिंट दिस मैसेज, यू ऑल नो। क्यों, क्योंकि पिकल डॉट लोड फंक्शन तो EOF एरर देगा लास्ट में, जब वो बियॉन्ड एंड ऑफ फाइल जाएगा, और जैसे ही EOF एरर आएगा, वाइल के बाद लिखी हुई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, दैट्स मीन्स एक्सेप्ट एरर तो आएगा ही आएगा, मैसेज डाल दो even डॉट बिन एंड odd डॉट बिन आर created and filled with numbers। और अगर EOF का एरर आता है, सॉरी EOF नहीं, फाइल नॉट फाउंड का, उसे आप मेंशन कर दो, फाइल नॉट फाउंड, बिकॉज वी हैव यूज्ड दिस फंक्शन। अगर रीड फंक्शन एरर दे रहा है, राइट वाले में एरर आ रहा है, तो हियर यू कैन राइट फाइल नॉट अवेलेबल, बाय मिस्टेक ड्राइव लॉक है, एनीथिंग कैन हैपन, फाइल नॉट अवेलेबल, फाइन। फिर लास्ट में क्या बोला है, प्रिंट करने के लिए बोला है F2 और F3, इवन डॉट बिन और ऑड डॉट बिन को प्रिंट भी करवाना है। एक फाइल तो क्लोज कर दो, यहाँ क्लोज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नाउ जस्ट गिव द मैसेज, कंटेंट ऑफ इवन डॉट बिन फाइल इज, वेरी इजी, कंटेंट ऑफ इवन डॉट बिन फाइल, मुझे इवन डॉट बिन फाइल को प्रिंट करना है, तो वही काम करना पड़ेगा ट्राई एंड एक्सेप्ट से।
2 बार कॉपी करना होगा। while true r equals to pickle dot, सॉरी, अब देखो एक सेकेंड, यहाँ पर अपन को पहले फाइल क्लोज करनी पड़ेगी। वाई सो, लेट मी टेल यू, क्योंकि आपने अभी फाइल को राइट मोड में खोला हुआ है, फाइल को राइट मोड में ओपन करा हुआ है। आई विल लेट यू नो फ्यू मोर सीक्रेट्स अबाउट फाइल हैंडलिंग, सम मोड लाइक RB प्लस WB प्लस, जिसमें मैं राइट के साथ में प्रिंट भी कर सकता हूँ, राइट के साथ में प्रिंट भी। अभी तो राइट मोड में खोली हुई थी, अब वापस क्या करो, फाइल को दोबारा ओपन करो। किस मोड में? रीड मोड में। कौन सी वाली फाइल? even डॉट बिन। रीड मोड में ओपन कर लो, अब इसे प्रिंट करो। कोड ऑलमोस्ट यही रहने वाला है, प्रिंट करने का कोड ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा। तो लेट मी कॉपी इट, और लेट मी कॉपी दिस, इसे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि प्रिंट करने का कोड ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। और F2 की जगह चाहे से आप ऐसे कर लो, कौन सा? even डॉट बिन RB, ठीक है। यहाँ एक मैसेज डाल दो, प्रिंट कंटेंट्स ऑफ even डॉट बिन फाइल, ठीक है। F1 नाम ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंट करता जाएगा। फाइल नॉट फाउंड एरर, ये सेम है, ठीक है। इसी के बाद दोबारा कॉपी कर दो इसी चीज को, सेम टू सेम, बस क्या करेंगे, फाइल का नाम चेंज कर देंगे, वेरी इजी। जस्ट चेंज द नेम ऑफ फाइल, कंटेंट्स ऑफ और डॉट बिन फाइल, यहाँ और डॉट बिन लिख दो, पिकल डॉट लोड, सब कुछ सेम है। फाइल इज नॉट अवेलेबल, ऑल द नंबर्स प्रिंटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो देखो सारा हो गया। जस्ट इट्स ऑल अबाउट कॉलिंग दिस फंक्शन। हमें सिर्फ क्या करना है, कॉल करना है फंक्शन को। पहले इंसर्ट, देन डिस्प्ले, आफ्टर दैट स्प्लिट। बड़े प्रोजेक्ट में अपन मेन्यू बनाएंगे, मेन्यू, इट्स जस्ट लाइक गेम, जैसे गेम प्ले करते हो आप। 1 प्रेस करो ये वाली गेम ओपन होगी, 2 प्रेस करो ये वाली गेम ओपन होगी, इन सच वे। लेट्स रन इट नाउ। Okay, press yes to start. Let me not press yes, let me press no. See now, all the numbers are stored successfully। मैसेज तो ऐसे ही आएगा, कोई कंटेंट नहीं है बिन फाइल में, कोई कंटेंट इवन बिन में नहीं है, कोई ऑड में नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने पास कुछ स्टोर ही नहीं किया। लेट्स ट्राई टू स्टोर नाउ, लेट्स रन इट अगेन। yes, enter the number 10, do you want to continue? yes, enter the number 11, do you want to continue? yes, enter the number 12, and now let me print no। तो 3 नंबर स्टोर हो गए, 10 11 12। तो देखो 10 और 12 चला जाएगा इवन वाले में, और 11 चला जाएगा अपने पास उस वाले में। सी नाउ, कंटेंट्स ऑफ नंबर्स डॉट बिन, ऑल द प्रिंट नंबर्स प्रिंटेड सक्सेसफुली। नाउ even डॉट बिन, odd डॉट बिन आर क्रिएटेड एंड फिल्ड विद नंबर्स, मैसेज आ गया। कंटेंट्स ऑफ even डॉट बिन 10 और 12, ऑल द नंबर्स प्रिंटेड सक्सेसफुली। कंटेंट्स ऑफ odd डॉट बिन, एक ही नंबर, ऑल द नंबर्स प्रिंटेड सक्सेसफुली, ठीक है। दिस इज द कोड। सो वी हैव डन वन अमेजिंग क्वेश्चन टुडे। साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं प्रोग्राम के अंदर, वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम इट इज। सो नाउ आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपको ट्राई करना है, यू हैव टू ट्राई, ट्राई टू लर्न, ट्राई टू लर्न अबाउट, ट्राई टू लर्न अबाउट R प्लस। जस्ट कोशिश करो फ्रॉम इंटरनेट और फ्रॉम एनीवेयर, इफ यू कैन रीड दिस स्मॉल असाइनमेंट फॉर यू पीपल, WB प्लस AB प्लस।